सारा का सारा रेरा आते ही सोल्ड आउट हो गया। जैसे कौन कौन सा प्रोजेक्ट को डिजाइन किया? किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे फोकस करा है, बीट किड्स, या किस पे फोकस करके आपने बनाया? अगर किसी 3 BHK को एक एडिशनल कार पार्किंग चाहिए या 2 एडिशनल कार पार्किंग चाहिए या 4 BHK को, the primary soil testing and other things, and then technology which has come up now with स्क्रीन है, इस पे जो नंबर दिख रहा है आप इस पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हैं कॉल करके। हाय, आज मैं सेक्टर 102 में आया हूं और मैं HCBS के ऑफिस में आया हूं। यहाँ पे मैं आपको एक लग्जरी प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो HCBS लॉन्च कर रहा है। ये काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। ऐसा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आज के हाई डेंसिटी जोन में बहुत ही मुश्किल से आता है। अंदर चलते हैं, इनकी मैनेजमेंट टीम से मिलेंगे हम, इनके सेल्स हेड से मिलेंगे, इनके आर्किटेक्ट से मिलेंगे, इनके जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी उनके हेड से मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट को डिटेल में रिव्यू करेंगे। इसके बारे में एक एक डिटेल जानेंगे। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताता हूँ। नमस्कार सर, हाउ आर यू? Absolutely fine. Great sir, thank you for giving me time for this review. And sir, I want to know about yourself, though I know you, but my viewers might not be knowing you. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बता दें सर, and how you are associated with HCBS. Thanks for talking. I'm Colonel Kadian. जी. I had served in the Corps of Engineers in the Indian Army for 25 years. 25 years? Yes. Okay. Then about 15 years back, I had left Army, and now since then I'm into real estate sector. All right. I was handling various projects in Mumbai, real estate projects. For the last 4 years, I am associated with HCBS Development. All right. Here in NCR. So what is your association with HCBS? I am the director in the company. All right. Handling various aspects, but primarily being a civil engineer background, I am more oriented towards the technical matters with respect to construction, contracts and monitoring of the projects. So the कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो इस प्रोजेक्ट का होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस you can say that because I'll be directly handling and monitoring. We have got various lower down staff also. जी. But obviously with my experience I'll be able to contribute much towards the quality control. All right. So from the defense background ये तो इंश्योर करेंगे कि आप अच्छा कंस्ट्रक्शन हो बिल्कुल साइट पे? Absolutely. I would in fact rather say I'm good at finding out faults. Okay. So at the time of construction, when I find out fault, obviously they'll be good for the construction and overall development of the project. All right, sir. I also want to know कि HCBS as a company क्या है, कहाँ कहाँ काम आपने पहले किया HCBS ने, कोई नया प्रोजेक्ट, जैसे दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट, इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा लैंड पार्सल है या एक्सपेंशन प्लान क्या है सर फ्यूचर में हमारा? The HCBS is into real estate sector for the last about 2 decades or so. Okay. They started as small time real estate managers with respect to acquisition of the land. All right. Then various builder flows. Okay. And over a period of time, they have got a good land bank. They had developed a sports villa, affordable group housing in Sona. All right. Presently on the Dwarka Expressway, we are having Auroville group housing. Okay. And the number of builder floors have been constructed by them and sold off. So what I know कि आपने बहुत सारे बिल्डर्स को all across गुड़गांव, स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ पे आपने लैंड पार्सल्स भी दिए हैं। Correct. ये कौन कौन से यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स अब बन गए इन पार्सल्स में? No, our own projects are going on. However, in sector 104, about 17 acres of land, we are in joint venture with Trident Realty, which is again a very big name in the realty sector. Correct. And primarily the land belongs to our company. All right. So it's a joint venture between your company HCBS Absolutely. and the Trident Realty. You are right. You are right. All right, sir. And what are your expansion plans? Expansion plans, in addition to number of land banks in the NCR, we have in the neighboring also, that is the Jhajjar. We have got about 10 acres land. We have already launched a Deen Dayal scheme. Okay. We have land bank in Faridabad, and at other places we are in various stages of acquisition of land as we progress ourselves. All right. So now we have decided that our core business is going to remain real estate, and accordingly, based on the timing, we'll keep expanding. What I know about Jhajjar land parcel is कि सारा का सारा रेरा आते ही sold out हो गया. So is it true? It's very, very, very correct. In fact, one of our very senior person wanted to purchase a plot, but he couldn't get because everything was sold out. So that's the thing. And so वहाँ पे और phases लाएंगे आप?
We are in with the neighboring land. We are in talks with them. Okay, so more phases are expected. More there. phases are in Sona also. We are doing the extension. Already the license LOI has been acquired. जी. We had applied for license, and very soon affordable group housing as part of extension of the sports villa will be taking place. So I'll ask two more questions from you, sir. Yeah, please. In the entire Dwarka Expressway, यहाँ पे हमारा कितना लैंड पार्सल है HCBS का? Be it under construction, be it ready to move in, be it yet to be launched project. तो total land parcel Under construction around 9 acres is in sector 103, which is the Auroville. जी. Around 1200 flats affordable. That's also completely sold out. That's absolutely completely sold out. We are in very advanced stage. Then in 102 sector about 5.5 acres of land is there. All right. And in 104 about 17 acres land is there. Okay. So we have got a fairly good collection of the land. Somewhere around 35 acres of land parcel. 35 acres of land bank is there. All right, sir. And since your project of sector 102, it's a newly launched project. आप इसको टाइम से कैसे कंप्लीट कर पाएंगे सर? You see, firstly is our confidence and our experience. जी. Confidence comes from that we have put everything in place, and secondly the experience. All our previous projects we have delivered in time, and we don't foresee any bottlenecks or anything. We follow the processes laid down, and accordingly we should be able to complete the construction. As also seeing the sales part. Since the sales are happening, the money will keep coming and we will be able to construct it. So and what? RERA is already there to monitor that the money which comes from sale gets utilized for the project. Right. So it's a cycle. We have a good sale, we'll be able to construct, we'll get some more construction linked money, and we'll be able to complete the project in time. And is this company under some kind of liability or debt, या कहीं पे कुछ चीजें delayed हैं, अटकी हुई No, हैं? absolutely. We are being funded by the customers. We don't have any liability with respect to the land which we are already having. All right. And since the sales are happening, the money is coming, we are able to construct, we'll be able to deliver. There is no such liability with any banker or anybody else. All right. So there is no debt. It's a debt-free company. It's a debt-free company. Absolutely debt-free company. All right, sir. Thank you so much. It was a pleasure meeting you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Hi Mohit ji. Hi Pooja ji. How are you? Hi, good. Hi. मुझे पता है कि you are heading the sales, मोहित जी, but I want to know about पूजा जी. First time ऐसा होगा कि हम किसी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट से मिल रहे हैं और उनका विजन और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचकर इस प्रोजेक्ट को विजुअलाइज किया है. So आज हमारे साथ पूजा जी हैं. So she is from Morphogenesis. ओके. And इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है इन्होंने और इनकी टीम ने. So इन्होंने Morphogenesis एक one of the oldest architect firm in Delhi NCR. So Delhi NCR के अंदर सबसे पुरानी एक आर्किटेक्ट कंपनी है. So इन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा डिज़ाइन किया और इन्होंने गुड़गांव में काफ़ी प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया. जैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट को डिजाइन किया? जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल आप ट्रम्प टावर्स को ले सकते हैं जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर है. ट्रम्प टावर्स को आपने डिजाइन किया? हाँ जी. ओके. और अभी हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है AIPL के साथ. ओके. हाँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो वर्किंग विद पारस. ओके. या. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम बताइए जो रेडी टू मूव इन हो गए हैं, जिसको अगर आप बताएं तो लोग उसको विजुअलाइज करके सुन भी पाए या देख भी पाए सर्च करके कि अच्छा ये बिल्डिंग इन्होंने डिजाइन किया है. So we are also working. So we have already designed Mahindra Luminaire in Okay. Gurgaon. All right. And Emaar, Digi Homes, जो already ready to move जी. in है. Even Mahindra Phase 1 is ready to move in. अब now Phase 2 is in process. ऑल राइट. Yeah. ओके. इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूं मैं कि इसको इस जो ये बिल्डिंग है या इसका जो लेआउट प्लान है, इसकी क्या यूएसपीज है और क्या सोचकर आपने इसको डिजाइन किया है? So जब हमें ये प्रोजेक्ट मिला था, ये साइट मिली थी, so we actually wanted to design और redefine the modern Indian living. तो अभी तक क्या होता था, Delhi culture is like people are more used to living in a bungalow. Right. So we wanted to bring in that feeling into the project. So that was the main like the USP we would say. तो हमारा आइडिया ये था कि हम लोग वेलनेस, आर्किटेक्चरल इंटीग्रिटी एज वेल एज जो फंक्शनैलिटी है वो सब एंड द नेचर वी ऑल ब्रिंग इन टुगेदर
and envision this project. So as I mentioned, to redefine the modern Indian living, तो एक आइडिया सबसे पहले जो हमने envision किया in term when we were designing the units as जी. well, we have given one to a core unit Okay. with each unit having a private lift. All right. So उससे क्या होता है, एक प्राइवेसी, एक एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है for each individual. So I mean each one feel like they are living in a sky bungalow because इसमें हमने क्या करा है, every apartment has a wraparound balcony. Okay. And we have given a 9 feet wide deck. Okay. So that can be used for morning yogas or a sundowner or just simply appreciating the skyline. Even अगर आप देखेंगे the placement of the building is in such way, there are 2 towers. जी. It has been placed in a way that you get maximum city views as well as the wetland views. Okay. So and there is no obstruction, right? And when we were planning the entire layout of the site as well, अभी क्या होता है कि आप देखेंगे जो normal developments होती हैं उसमें हर टावर का इंडिविजुअल ड्रॉप ऑफ होता है जी. हाँ, तो हमने यहाँ पे ये इमेजिन किया कि इफ़ यू सी देयर इज़ अ सेंट्रल ग्रैंड ड्रॉप ऑफ. ये वाला. हाँ जी. Okay. सो द आइडिया वाज दैट वहाँ पे आप ड्रॉप ऑफ करिए, मिनिमाइज करिए रोड मूवमेंट सो दैट द एंटायर द site is utilized for the landscape. All right. Instead of vehicles on the side. So from the grand drop off, you see a visual of the landscape as well. Okay. So from this grand drop off, you enter into your individual tower lobbies. Again, which is very private sort of a configuration because each apartment, as I mentioned, has a private lift. All right. So now, even if you look at the facade of the building, so as I mean there is Najafgarh Jheel in the vicinity as well as the Basai wetlands. So even the orientation is to maximize the views of Basai wetlands as well as the Najafgarh Jheel. And there are no high-rise building very nearby to this project. Yes, that is true. So unhindered view मिलेगा आपको. Correct. But tell me something. अब जितने भी builders आ रहे हैं, where you have 2 towers or 3 towers or 4 towers, they are normally coming up with podium जैसे चीजें होती हैं, उसमें Right. ग्राउंड लेवल होता नहीं है, हाँ. पोडियम होता है, पोडियम के ऊपर फिर टावर्स होते हैं जैसे इसमें मुझे दिख रहा है. Right. So this is also a podium level development. So idea here being that कि हमने जो टावर्स के नीचे we have placed the club. हम लोग ये सोच रहे थे कि हम कैसे मैक्सिमाइज करें इंटरेक्शन ऑफ द रेसिडेंट्स टू द लैंडस्केप. Okay. हाँ, सो दैट आई मीन पोडियम में क्या होता है ना, देन यू रिस्ट्रिक्ट योर लैंडस्केप टू अ सर्टेन लेवल. All right. यहाँ पे हम लोग नेचुरल ग्राउंड जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते थे और उसमें क्या है वेहिकुलर मूवमेंट भी हमने बहुत कम कर रखी है ऑन द ग्राउंड लेवल. Okay. So even the club is placed in a manner that it becomes like an anchor for the project. जहाँ पे each facility is planned in a way that it interacts with the landscape outside. Like अगर आप देखेंगे बीच में जहाँ पे आपका banquet है जो just below the swimming pool that you see, हाँ, so that banquet actually opens up into a celebration zone. Even Okay. the landscape is planned in a way कि आपका एक celebration zone है, एक leisure zone है, pinnacle zone है. तो क्लब की भी जो amenities हैं वो उसी तरीके से divided है. एंड नॉर्मली ये देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि द एमिनिटीज ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज फोकस्ड ऑन वन एज ग्रुप. हाँ, आपने क्या किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे फोकस करा है, No. बीट किड्स या किस पे फोकस करके so आपने the बनाया? idea here being that क्योंकि आपके जो यहाँ पे residents हैं, so here the amenities are placed in a manner that it caters to all age group, Okay. ranging from toddlers, then your teens, and then your like a senior citizen. So all the age groups are catered. So even the amenities of the club and the landscape corresponds to each age group. For instance, अगर आप ये वाला zone देखेंगे, यहाँ पे we have made a creche, Okay. right? और अगर आप देखेंगे इसके आगे we have placed activities which corresponds to the toddlers. All जैसे right. on the ground there are these the steps
Okay. And then there are some graphics on the ground which corresponds to or becomes a part of the crash itself. All right. And if you see here we have placed the banquets, right? So this becomes the entire this area becomes your celebration zone. Okay. So it can have a spill out onto the banquet can have a spill out onto the celebration area. All right. So अगर आप देखेंगे even this area is the indoor gym. Okay. Right? And if you see outside in the landscape, we have placed similar amenities so that it becomes like an extended amenity. Okay. So indoor gym अंदर है and outdoor gym आपका बाहर है. बाहर. And plus there are lots of sitting area. Correct. Amphitheater भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. हाँ जी. So I mean each zone is defined. So अगर आप देखेंगे ना, each and every part of the site is being utilized. All right. Like amphitheater हो गया, ठीक है, and then यहाँ पे there were some fountain. So here you have some children fountain, जो dancing fountain होता है. Okay. So like I mentioned, each and every part of the site is being utilized, and somehow we have tried कि जो indoor activities हैं वो आपकी outdoor activities से relate हो. All right. In मुझे the landscape. मुझे एक चीज़ और बताइए. Since you talked about नजफगढ़ झील. Yes. And उसकी cleaning भी चल रही है. हाँ. And Delhi government and Haryana government both Right. are working to Right. make it better. तो जो नजफगढ़ झील है यहाँ पे winters में स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं. Right. तो क्या हमने अपने प्रोजेक्ट में भी ऐसा कुछ किया है या प्लांटेशन ऐसा रखा है या कुछ किया है कि सो दैट बर्ड्स गेट्स अट्रैक्टेड और हमारे यहाँ पर आए? Right. तो अभी as I mentioned that this project is also a IGBC Gold certified, pre-certified building. What does it mean? So it's a rating for building that actually ensures that आपकी जो भी units हैं they have natural light and ventilation. Okay. Then जो आपके common areas हैं at least they are offset, the energy is offset by placing the solar panels. So this also helps in bringing in the charges जो utilization होता है. Camp charges, monthly maintenance charges. Right. All right. Also जो आपकी plantation है, ठीक है, as I mentioned कि आपकी 3 zones में divided है, ठीक है, celebration zone, then pinnacle zone and your leisure zone. All right. So even there the plantation is since it's an IGBC Gold pre-certified building, so it has been the plantation has been carefully selected. Okay. In terms of native plantation that will also attract birds, and there is also constant reminder that certain periphery plantation are done for privacy. Okay. Even in the elderly zone there are these flowering plants. Okay. In the kids zone the plantation is done in such a way that they shade the area. Okay. So that careful consideration has been done while designing the landscape. So if we talk choosing about the plants. Okay. My last question to you. From an architect point of view, वो 5 USPs क्या हैं इस प्रोजेक्ट के जो बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेंगे? So one definitely is 1-2 core unit, bungalow living. All right. And then you have unobstructed views. Okay. 270-degree views actually. I have seen Mahindra Luminar. उसकी जो बालकनी है, it's a wrap around. Designed by us as well. Yes. तो जब आपने बोला तो मैं उसी को विजुअलाइज करता. उसकी बालकनी मुझे बहुत पसंद है चारों तरफ से. Right. So I mean in this project also the USP is that you actually get the view of the झील, wetlands as well as the cityscape. All right. So ये तो 2 हो गए, बाकी 3 क्या हैं? And also the thing is that यहाँ पे हमने vehicular movement जो मिनिमाइज करने के लिए एक कॉमन ड्रॉप ऑफ दिया है. All right. जिसमें हर अलग जो दूसरे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स आपने देखे होंगे आपको अलग अलग हर लॉबी अलग अलग होती है जी. तो इसमें हमने कंसोलिडेट करा है टू गिव दैट फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर. ओके. एंड प्लस द क्लब हाउस इन इटसेल्फ इज एन एंकर, क्योंकि आपके क्या है ऑल द एमिनिटीज आर एक्चुअली रिलेटिंग जो इनसाइड enclosed amenities are there
each amenity is actually relating to the outside as well. All right. So that inside-outside connection, being placed in the nature is something which is a USP of the project. So, जो इस project का clubhouse है, it actually is an anchor. Okay. Because it is placed below the towers. All right. हाँ, तो अगर आपने देखा होगा दूसरी development में क्या होता है, that the clubhouse is a separate building. So here there is a seamless movement. All right. हाँ, अब जैसे अगर आप podium level पे भी देखेंगे इसके, जी. where you have your infinity edge pool, Right. which is then supported by your spa as well as a juice bar. Okay. हाँ, so there is a seamless movement of residents from the top level to the ground level. Okay. ठीक है, they don't have to walk separately to a segregated building. So this actually enhances the entire experience. It's a seamless movement. All right. तो ये तो आपने 4 USPs बता दिए. 5वां USP क्या है? So the fifth USP of the project is that each apartment, as I mentioned earlier also, is it's sort of a private. It has a private core. Okay. जिसमें आपको हर अपार्टमेंट में 2 अपनी private lifts मिलती हैं. Okay. हाँ. So in the total project, there are 9 lifts, which is a very rare thing in projects. So these 9 lifts are all of them passenger size lift, जो बड़े वाले lift होते हैं जिसमें stretcher आराम से आ सकता है. So, and are these high speed lifts? These are definitely high speed lifts. So each apartment में जो lift आपकी private lifts लगी हुई हैं, they are definitely for the residents. But आपका जो एक fire core है, fire tower है, उसमें हमने एक stretcher lift दी है, which can be definitely used by जो आपको service देते हैं घर पे, maid हो गए या कोई और electrician आ रहा है. So for them we have a dedicated lift. All right. हाँ. Apart from that, each although it's a single to a core, that is how we want to we have envisioned this project. तो आपको हर अपार्टमेंट, जैसे 4 अपार्टमेंट्स हैं, तो टोटल लिफ्ट आपके हो गए 8 + 1, which is 9 lifts per tower. So इसमें भी 9 लिफ्ट है और हाँ जी. दूसरे टावर में भी 9 lift लिफ्ट है. इसमें भी So 9 टोटल lifts 2 हैं. टावर में 18 लिफ्ट्स है. You are Right. saying. Okay. और एक जो अपार्टमेंट है, अगर आप देखेंगे, इस अपार्टमेंट में आपको प्राइवेट 2 लिफ्ट्स मिलती हैं, और जो बीच वाला कोर है, विच ऑल्सो फॉर्म्स द फायर टावर, वहाँ से आपको एक सर्विस लिफ्ट मिलती है. All right. Okay. So in terms of the layout also, जब हमने प्राइवेट कोर डिज़ाइन करा, so we wanted to segregate the private and the public space of Okay. the unit. तो अगर आप देखेंगे, हमने ट्राई करा है कि लीनियर आपको लिविंग डाइनिंग मिले, उसके आगे यू हैव अ 9 feet वाइड balcony. So the idea being that it becomes, when you open the windows or the sliding doors, it becomes like a huge space where you Okay. can have in home also, you can have a small get together. And then again the idea being that obviously we are utilizing the cityscape and the wetland views as well. So I mean it becomes an expansive space Okay. in each unit. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है नजफगढ़ झील और बसाई वेटलैंड्स, सो अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फॉर्म और द facade was taken from the nature. Okay. So even if you see right now, this entire facade is basically inspired by from a bow of a tree, which is very much has been mimicked like a tree branch. Right. Even the materiality of the It's wooden kind of a look जो दे Yes. रहा है मुझे. So the idea was to mimic the nature, and so that people also feel that they are part of the nature itself. So even if you see the landscape, the entire language, your walking path or the spaces that are designed are somehow inspired by either the river, flow of the river, or branches of the tree. All right. Yeah. So now I will hand over to Mohit, who's a sales head here, to take you through the project. Mohit. All right. Thank you. Thank you. Lokesh ji, hi. Hi sir, how are you? I'm good. How are you? All good sir.
लोकेश जी, मुझे मोहित जी ने कहा है कि आप पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को डिटेल में, तो आई वुड वांट कि ये जो पूरा आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे दिस शुड बी इंफॉर्मेटिव, सेल्स करने की कोशिश ना करें, सेल्स पिच नहीं होना चाहिए इसमें, है ना? हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा सा आपने एक स्ट्रक्चर लगाया है दीवार पे, और उसमें मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है। करेक्ट जी, तो हम कहाँ पे हैं, कैसे? डन सर, अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे सर। ओके, अभी यू आर स्टैंडिंग समवेयर हियर, सेक्टर 104 में। सेक्टर 104, और जो मेट्रो आएगा वो यहीं पर आएगा, वो मेट्रो ये रहा सर, स्टेशन। इधर इधर मेट्रो आएगा। ठीक है, मेट्रो स्टेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं मेट्रो स्टेशन होगा, इस जगह पे, रोड के ऊपर। अच्छा, ओके। जी, ठीक है। तो अभी यू आर स्टैंडिंग समवेयर हियर। अभी ये अगर आप देखते हो तो ये सेक्टर 104 वाला, जो 104 वाला राउंड अबाउट है, सर्कल राउंड अबाउट है। सो दिस रोड इज गोइंग टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक, जहाँ पे रैपिड रेल का जो नमो भारत का स्टेशन आएगा, वो वहाँ पर आएगा। वो वहाँ पे आएगा। तो इस सर्कल से अभी ये आप इधर जब खड़े हुए हो तो इधर एक 18 एकर्स का लैंड पार्सल है। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ट्राइडेंट कमिंग टू गुड़गांव। जी हाँ, तो ट्राइडेंट का सर जेवी हमारे साथ ही है। सो इट्स अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अस। तो ट्राइडेंट एक बहुत बड़ा नाम है रियल्टी सेक्टर में, तो दे आर कमिंग विद अस। तो ये जो 18 एकर्स का लैंड पार्सल है, ये ट्राइडेंट के साथ अभी हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉइंट वेंचर है। जी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पूरी एमरल्ड बे इन सेक्टर 104, राइट, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट गॉट लॉन्च्ड इन 2015 में इसको लॉन्च किया था और 2020 में इसको डिलीवर कर दिया था। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सो ये सर ये भी अगेन जेवी था हमारा और पुरी का। ओके, इसके जस्ट ऑपोजिट इज सेक्टर 103, राइट। इधर सर ये जो सेक्टर 103 की ये रोड अंदर जो जा रही है सेक्टर के अंदर, इधर आप अगर जाते हो तो यहाँ पे एक सेक्टर 103 में एक प्रोजेक्ट आता है HCBS ऑरोविल है। जी, दिस इज अ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, गॉट लॉन्च्ड इन 2021। ये पहला ऐसा अफोर्डेबल है जिसके अंदर वी हैव बेसमेंट कार पार्किंग। ओके, और सर इसके अंदर हम क्लब हाउस बना के दे रहे हैं। ग्रेट। तो दिस हैज समवेयर अराउंड 1300 अपार्टमेंट्स जी, प्लस इसके अंदर इसका खुद का कमर्शियल है, बहुत प्यारा सा। राइट। सो नेक्स्ट ईयर इसकी पोजेशन है। द रीसेल कॉस्ट विल बी अराउंड 96 लाख रुपीज। पोजेशन वी आर एक्सपेक्टिंग की पोजेशन तक ये इट विल बी समवेयर अराउंड 1.15 CR। ऑल राइट, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट। अभी हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये दिस इज अ टॉक ऑफ द टाउन। ये सर सेक्टर 104 पे, जैसे कि मैंने आपको सर्कल बताया था, इस सर्कल से नेक्स्ट सर्कल इज 99 का सर्कल बोलते हैं सर इसको। जी, इसको मेजरली दादा भाई चौक के नाम से भी जाना जाता है। ओके। इस सर्कल से जैसे ही आप यू टर्न लेते हैं तो ये सर एक बड़ा सा लैंड पार्सल देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये सर सेक्टर 102 है। राइट, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी गांव विलेज नहीं पड़ता है। परफेक्ट सर, क्लीन लैंड है, बिल्कुल क्लीन लैंड है सर। इसके साथ कोई भी गांव का घर नहीं लगता है। जी। दिस इज द ओनली सेक्टर अगेन सर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे विच इज कनेक्टेड फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। ये 60 मीटर रोड जो सीधा सेक्टर के पास जा रही है, दिस इज अगेन 75 मीटर रोड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। जी, ये धनकोट का सर्कल है, धनकोट के सर्कल से दोबारा से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाते हैं। ठीक है, इस सेक्टर के साथ जस्ट ऑपोजिट सेक्टर 100 एंड सेक्टर 101 है। राइट, ये दोनों सर ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। करेक्ट। 107 में भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, पीछे 107 है और आगे 100 एंड 101 है, दोनों 101 साइड कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है। इस सेक्टर की सर एक और बहुत बड़ी खूबी है कि इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा लो राइज डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि 250 एकर्स का सेक्टर है जी। 250 एकर्स में से 116 एकर्स में प्लॉटेड डेवलपमेंट है सर। बीपीटीपी एम्स्टोरिया का प्लॉटेड बीपीटीपी एम्स्टोरी सर, इसी के साथ में लगता हुआ प्रोजेक्ट है HCBS ट्विन होराइजन। ओके सर 116 एकर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लॉटेड डेवलपमेंट है, तो इधर ये सेक्टर बहुत ही, इसके अंदर बहुत कम हाई राइजेस आएंगे जी। इसके अंदर मेजॉरिटी लो राइज डेवलपमेंट है, तो हाई राइज बहुत कम होने के कारण ये सेक्टर भी सर अपने आप में लो डेंस सेक्टर है। राइट सर, तो ये जो प्रोजेक्ट है सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5.29 एकर्स का लैंड पार्सल है, बस और बस इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 टावर्स हैं सर। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो मैं रास्ता देख रहा हूँ यहाँ पे, जो आपने रास्ता यहाँ पे तो लाइट में बड़ा खूबसूरत सा आपने ये रास्ता दिखा दिया है 24 मीटर रोड का, बट गुड़गांव की पॉलिसी में ही एक दिक्कत है, हरियाणा की पॉलिसी में ही दिक्कत है, 24 मीटर रोड बनते नहीं है। तो आप कितने कॉन्फिडेंट है कि आपका जो ये लैंड पार्सल है यहाँ के बीच में जो पूरा 24 मीटर है ये कंप्लीट हो जाएगा टाइम से?
सर ये वैसे मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी मिल रही है आपको कि ये जो 24 मीटर की जो रोड है ना, ये बन चुकी है सर। इट इज़ अ मोटरेबल रोड। आज आप अगर गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट पे गाड़ी चला के अपने जा सकते हैं। सो ये वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट हुआ जहाँ पे 24 मीटर रोड ऑलरेडी फंक्शनल है। करेक्ट। ऐसा तो नहीं है ये 24 मीटर रोड का जो लैंड है आपने किसी गांव वाले से रेंट में लिया हुआ है सिर्फ प्रोजेक्ट को बेचने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल रोड बनी हुई है। आज अगर आप जाते हैं प्रोजेक्ट की रोड पे तो आप प्रोजेक्ट अगर एक्सेस करना चाहते हैं, साइट देखना चाहते हैं, तो आप इस रोड के थ्रू ही इस साइट पे जाएंगे। ऑलराइट, और ये फंक्शनल है? ये फंक्शनल है सर। वेरी गुड। तो और बहुत रेयर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में जहाँ पे 24 मीटर रोड जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने या बनने से पहले 24 मीटर रोड पूरा बना हुआ है। ये सर बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई भी मेरे हिसाब से बहुत ही कम बहुत रेयर है, बहुत रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आई वुड से। सर दिस जेम इज वन ऑफ देम। यस। तो ठीक है सर, नाउ विल गो टू द मॉडल। तो आई विल गिव यू द प्रोजेक्ट ब्रीफ कि क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या खूबियां हैं, आपको ये क्यों लेना चाहिए, ये बाकी प्रोजेक्ट से क्यों डिफरेंट है। ऑलराइट। तो अभी हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं, मॉडल पे, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आपकी आर्किटेक्ट मिस पूजा ने कुछ तो मॉडल एक्सप्लेन किया था, बट फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सर आई विल एक्सप्लेन यू क्लाइंट के एक पर्सपेक्टिव से आपको कि क्लाइंट को ये क्यों लेना चाहिए। इन्वेस्टर और एंड यूजर पर्सपेक्टिव से मुझे आप चाहिए होगा ये। डन सर। तो सर लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताई थी, तो सर ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे ही ये 24 मीटर वाइड रोड है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि ऑपरेशनल है जी। ये रोड सर, इस रोड से जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो सर ये 40 मीटर वाइड एंट्रेंस है। ऑलराइट, ये जो रोड है यही अगर इस तरफ होता तो आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है ये? यस सर, ये आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से, द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड से कनेक्टेड है। करेक्ट सर। ऑलराइट। तो सर जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट के अंदर घुसते हैं जी, आप डायरेक्टली बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। सो ये प्रोजेक्ट का मेन गेट यहाँ पर हो गया? ये प्रोजेक्ट का मेन गेट है। ये प्रोजेक्ट के मेन गेट से जैसे ही आप एंटर करेंगे, ठीक है, यू डायरेक्टली गो टू द बेसमेंट। ऑलराइट। अगर आपकी गाड़ी शॉफर के साथ, अगर आप शॉफर के साथ आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी सर ऐसे घूम के आएगी। दिस इज आवर मेन ड्रॉप ऑफ जोन। ओके। और जैसे ही गाड़ी आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगी, वैले विल टेक योर कार डायरेक्टली टू द बेसमेंट अगेन। अच्छा, आपने ये ड्रॉप ऑफ जोन के पास ही बेसमेंट में जाने का रास्ता बना दिया है? करेक्ट सर। ऑलराइट। So in short, what I want to say is, so we don't have any motor movement in the project in amenity zone. So amenity zone में कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर मोटर मूवमेंट नहीं है। ऑलराइट। इसमें अब क्योंकि आपने बेसमेंट की बात करी तो पहले बेसमेंट के बारे में जानते हैं। करेक्ट सर। कितने लेवल ऑफ बेसमेंट है? सर इसमें 3 लेवल ऑफ बेसमेंट है, बेसमेंट 1, 2 एंड बेसमेंट 3। ओके। राइट और सर। टोटल नंबर ऑफ कार पार्किंग्स कितने हैं इसमें? सर इट इज समवेयर अप्रॉक्सिमेट 1000 कार पार्किंग। 1000 कार पार्किंग्स। और टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं? 268। आई थिंक ये भी पहला प्रोजेक्ट है ये भी पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1800 कार पार्किंग फॉर 268 अपार्टमेंट। तो ये इसमें जिन लोगों ने लिया है, आपने पहले से ये सोचा हुआ है कि उनके पास मल्टीपल कार्स हैं या व्हीकल्स हैं? सर मल्टीपल कार्स ये तो सोचा ही हुआ है, बल्कि मल्टीपल कार्स मुझे पता ही है क्योंकि आज के डेट में सबके पास मल्टीपल कार्स हैं। तो हम सर 3 BHK के साथ जैसे कि हम कॉम्प्लीमेंट्री 2 कार पार्किंग दे रहे हैं। ओके। 4 BHK के साथ 3 कार पार्किंग दे रहे हैं। अगर किसी 3 BHK को एक एडिशनल कार पार्किंग चाहिए या 2 एडिशनल कार पार्किंग चाहिए या 4 BHK को 1 या 2 और कार पार्किंग चाहिए तो वो भी ले सकते हैं? सर वो ले सकते हैं। दे हैव टू जस्ट पे 5.5 लाख रुपीज फॉर 1 कार पार्किंग। ऑलराइट। ठीक है। सो जैसे ही सर आप ये मेन ड्रॉप ऑफ जोन पे आते हैं तो ये सर मेन एंट्रेंस है प्रोजेक्ट की। ओके। दिस इज अ वाटर बॉडी और जैसे ही अंदर आप इधर से ही आप एंटर कर जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जी। अंदर घुसते ही यू गेट अ ग्रैंड लॉबी, ग्रैंड क्लब हाउस लॉबी। आप अगर राइट लेते हैं तो यू गो टू अ टावर ईस्ट लॉबी। फ्रॉम टावर लॉबी यू गो टू अ लेफ्ट एंड लॉबी एरिया। ऑलराइट। तो ये जो टावर लॉबी है इसकी हाइट 20 फीट है, अगेन डबल हाइट लॉबी। और टावर लॉबी से डायरेक्टली आप लेफ्ट एंड लॉबी एरिया में जाते हैं। ऑलराइट। अगेन लेफ्ट एंड लॉबी एरिया इज ऑल्सो डबल हाइट। ओके। So this is 20 feet high, मतलब 20 फ्लोर टू सीलिंग हाइट है 20 फीट। ऑलराइट। तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इधर ड्रॉप ऑफ जोन है, डायरेक्टली आप अगर राइट लेते हैं तो टावर लॉबी में चले जाते हैं, टावर ईस्ट की लॉबी में। जी। लेफ्ट लेते हैं तो टावर वेस्ट की लॉबी में चले जाते हैं आप। जी। तो सर ये बनाने का ये लॉजिक क्या है कि 2 टावर्स, सबके अंदर टावर्स हैं,
सब में डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस, दोनों टावर्स में डिस्टेंस भी देखा होगा आपने प्रोजेक्ट्स में जी। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर सबसे बेस्ट है कि मौसम खराब जैसे होता है, आप जानते हो कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, स्पेशली दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली इंडिया एनसीआर में। का ही सर मेजर आपको बता रहा हूँ कि ठंडी बहुत ज़्यादा, अभी जैसे आप देख रहे हो ठंडी का वेदर है, मतलब सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश है तो बहुत ही ज़्यादा बारिश है। तो इस केस में क्या है कि सर ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट बनता है इकलौता कि आप अगर कोई आप गाड़ी से आ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू, बारिश अगर हो रही है, एक ही ड्रॉप जोन है, आप जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर घुस जाते हैं। आपको अगर टावर ईस्ट में जाना है तो आप टावर ईस्ट में चले जाते हैं, टावर वेस्ट में जाना होता है तो आप टावर वेस्ट में चले जाते हैं। तो दिस बिकम्स अगेन यूनिक कॉन्सेप्ट कि आपके अंदर कि आप गीले नहीं होते, आपको वेदर का, हार्श वेदर का आपको इफेक्ट बहुत कम होता है। सर तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है कि आपने देखा होगा बाकी प्रोजेक्ट्स की 10 टावर्स हैं, क्लब हाउस बीच में बना दिया है या फिर कुछ टावर्स के बिल्कुल बगल में बना दिया है क्लब हाउस। जी। तो उसमें क्या होता है ना कि सर जो टावर्स पास में हैं वो तो क्लब हाउस की लुक और फील ले लेते हैं, लेकिन जो टावर्स दूर है ना उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो टावर्स और एमिनिटी, मतलब जो अपने टावर्स से क्लब हाउस पहुंचने में उनको काफ़ी टाइम लगता है और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो एमिनिटीज यूज हाँ, नहीं मैं कर ऐसे पाते। कई लोगों को जानता हूँ जिनका क्लब हाउस बहुत अच्छा है बट वो जाकर यूज़ नहीं करते। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो उनकी टावर जो है वो क्लब हाउस से दूर है, इस वजह से वो यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे सर मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ कि जिनका क्लब हाउस जो है उनका बहुत अच्छा क्लब हाउस है लेकिन वो क्लब हाउस यूज़ नहीं कर पाते हैं अपना। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हो गया, आपने क्लब हाउस क्यों यूज़ नहीं करते? तो वो कहते हैं यार बड़ा दूर पड़ जाता है क्लब हाउस, सो रोज़ आते हैं, शाम को आते हैं, दूर पड़ जाता है तो सोचते हैं घर में ही रुक जाते हैं। हाँ, मतलब एक्सट्रीम अगर धूप है तो जा ही नहीं पाते होंगे क्लब हाउस धूप में, अगर बारिश हो रही है तो नहीं जा पाते होंगे। तो सर अगर एक्सट्रीम धूप है तो वो तब क्लब हाउस नहीं जा पाते, बारिश हो रही है तो वो क्लब हाउस नहीं जा पाते। तो सर इससे क्या होता है कि लोग फील ही नहीं कर पाते कि उसका क्लब हाउस कितना अच्छा बना हुआ है। ओके। ऑन दी अदर हैंड कि हमारा क्लब हाउस है कि आप एंटर करते हो तो सबसे पहले क्लब हाउस देखते हो, ठीक है। ठीक है, आप टावर से ऊपर जाते हो तो आप क्लब हाउस देखते हो, आप नीचे आते हो तो आप क्लब हाउस देखते हो। सो इन शॉर्ट आई वांट टू से, आप क्लब हाउस अगर देखते हो तो आप उसको यूज करते हो, आप खुद इनफैक्ट आपको मन करता है कि यार मैं जाके क्लब हाउस के एमिनिटीज तो यूज कर लूं। जी। सो वी वांट आवर कस्टमर्स टू our home buyers to enjoy the amenities which are present in the clubhouse. ओके, अच्छा थॉट प्रोसेस है। तो सर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्लब हाउस लॉबी, और क्लब हाउस लॉबी से राइट लेते हैं तो टावर्स लॉबी में जाते हैं। सो दिस इज टावर ईस्ट। ओके, टावर ईस्ट इज अ डेडिकेटेड 3 BHK टावर ऑल राइट, with only 134 units. ऑल राइट। Same for Tower West. This Tower West is a dedicated 4 BHK tower with 134 apartments. So sir, this project has 1000 car parkings 1000 कार पार्किंग्स। for 268 apartments. ओके, Again, 268 apartments, 1000 car parkings. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक घर के लिए सर 4 गाड़ियों की पार्किंग है। जी। सो ऐसा हम 4 दे नहीं रहे हैं, 3 BHK के साथ हम 2 कार पार्किंग दे रहे हैं, 4 BHK के साथ हम 3 कार पार्किंग दे रहे हैं। सो अगर किसी 3 BHK को एडिशनल 1 या 2 कार पार्किंग चाहिए या 4 BHK को 2-3 और कार पार्किंग चाहिए तो वो ले सकते हैं? वो सर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 कार पार्किंग है तो 268 मल्टीप्लाई बाय 4, सो ईच हाउस हैज 4 कार पार्किंग। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सारे लोग 4 गाड़ियां नहीं रखते हैं, हाँ जिसके पास अगर 4 गाड़ी भी है या फिर 3 गाड़ी है तो दिस कैन बी डन। ऑल राइट। सो आपने 3 BHK के लिए बता दिया, आपने 4, ये 3 BHK का टावर ईस्ट, दिस इज यस सर, टावर ईस्ट और ये टावर वेस्ट। यस। ऑल राइट। आपको अगर इन दोनों में से एक चूज करने को मिलता तो आप कौन सा टावर चूज करेंगे? सर मैं तो 4 BHK लूंगा। 4 BHK वाला। ऑल राइट, बिकॉज सर फैमिली बड़ी है तो मेरे लिए तो 4 BHK ही सूट करता है सर। ऑल राइट। चलिए 4 BHK का भी लेआउट देखेंगे और 3 BHK का भी लेआउट देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़ है। ठीक है सर। तो सर जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ में आपको टावर के बारे में बताना चाहता था सर। जी। सो अभी सर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 134 अपार्टमेंट्स हैं एक टावर्स के अंदर। एवरी अपार्टमेंट हियर इन दिस प्रोजेक्ट comes with a private 9 feet wide wrap around deck. ओके, मैं Right. पास से दिखा देता हूँ। हाँ जी सर, ये रैप अराउंड डेक।
ये वाला यहाँ से 9 फीट वाइड रैप अराउंड डेक। ऑल राइट। एवरी अपार्टमेंट, तो सर जैसे कि आपने देखा होगा बाकी प्रोजेक्ट्स में, द्वारका एक्सप्रेसवे में ही प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ यूनिट्स के साथ किसी डेवलपर के डेक है, तो दे आर चार्जिंग 35 लाख रुपीज एंड 25 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली विद 2 BHK एंड 3 BHK जी। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी हर यूनिट में डेक है, जिसके लिए वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। ऑल राइट। सो ये एक डेक हो गया, यहाँ पे एक बालकनी होगी। करेक्ट सर। राइट। और सर एक और चीज, ये लाइट आप देख रहे हैं सर जी। सर प्रोजेक्ट्स में बाकी लोगों को लगता है कि ये लाइट हमने जो लगा रखी है ये प्रोजेक्ट की ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा रखी है, या फिर मॉडल बहुत अच्छा लगे, या दिवाली में लगाते हैं, या दिवाली में लगाते हैं लोग। लेकिन सर इस प्रोजेक्ट की एक खासियत है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एम्बिएंट लाइट है ये इनग्रेव्ड है। तो ये इनग्रेव्ड है मतलब सर ये अंदर है, इसके अंदर अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप रात को अगर घूमकर कहीं से आते हैं जी और प्रोजेक्ट को दूर से देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से जी, तो दिस विल लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेस बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी लाइट इसके अंदर है, ये इनबिल्ट लाइट्स है। ओके। सो आपने प्रोविजन ऐसा किया लाइट्स का कि वो स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही वो इनबिल्ट कर दिया। करेक्ट सर। ऑल राइट। सो सर दिस विल लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। राइट। अब सर टावर्स की बात कर लेते हैं कि 2 टावर्स हैं, 268 अपार्टमेंट्स हैं, तो दोनों टावर्स के जो बीच में गैप है जी वो सर 52 मीटर्स का गैप है। ओके। अप्रॉक्सीमेटली 52 मीटर्स का गैप है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को नहीं मिलता है। ऑल राइट। आपने देखा होगा कि टावर्स हैं, काफी टावर्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, लेकिन टावर्स एक दूसरे से लगते हुए या तो हैं या फिर गैप है तो बहुत कम गैप है। अब तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स है। करेक्ट सर। राइट। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने बताया 268 अपार्टमेंट्स, करेक्ट सर। तो ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है या लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है? सर ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, 5.29 एकर्स के अंदर 268 अपार्टमेंट्स। ये आपने द्वारका एक्सप्रेसवे में शायद नहीं देखा होगा। सो पर एकड़ कितने अपार्टमेंट्स हो गए? समवेयर अराउंड सर 50 अपार्टमेंट्स पर एकड़ सर। ऑल राइट। ओके। राइट सर। तो सर इन दोनों के बीच में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लब हाउस है। सो दिस क्लब हाउस इज स्प्रेड अक्रॉस 1.15 लाख स्क्वायर फीट। जनरली दिस सॉर्ट ऑफ क्लब हाउस आपको उन सोसाइटीज में देखने को मिलता है जिसमें 1200 या 1500 फैमिलीज हैं। राइट। तो सर 268 अपार्टमेंट्स के लिए 1.15 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ओके। सो सर दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अगेन टू हैव अ क्लब हाउस of 1.15 lakh square feet for 268 families. All right. Right sir. So this clubhouse has everything that you can think of. जो भी चीजें आप सोचते हो, तो from pickleball court, badminton court, indoor badminton court, Zumba studio, multi-purpose hall, gymnasium, co-working spaces. ये सर नहीं सुना होगा किसी प्रोजेक्ट के अंदर जी। So this is the first project to have co-working spaces. Okay. A good library cafe, a cafe, एडिशनल कैफे फॉर मंचन। तो अगर आपको कभी मन करता है कि यार घर का खाना नहीं खाना, आज कोई बाहर से खा लेते हैं, तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू कम डाउन। नीचे प्रोजेक्ट के अंदर आपको कैफे मिल जाएगा मंचन के लिए। ऑल राइट। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक बार बोला बैडमिंटन कोर्ट और अगली बार बोला इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, तो बैडमिंटन कोर्ट जो है वो इंडोर है या आउटडोर है? अगर आउटडोर है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे बैडमिंटन कोर्ट का, उसको आप किसी और कोर्ट में डेवलप कर लीजिए। तो सर वो आउटडोर भी है और इंडोर भी है, दोनों ही बैडमिंटन कोर्ट? दोनों बैडमिंटन। ओके। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बैडमिंटन कोर्ट और इंडोर बैडमिंटन। ऑल राइट। हाँ जी। अगेन सर दिस प्रोजेक्ट हैज मतलब क्लब हाउस की जैसे कि हम बातें कर रहे हैं जी, तो क्लब हाउस हैज एवरीथिंग, कोवर्किंग स्पेसेस जैसे कि मैंने आपको बताया। एक और चीज सर सबसे अच्छी इस प्रोजेक्ट की क्या है कि दिस प्रोजेक्ट हैज अ एलिवेटेड स्विमिंग पूल व्हिच इज 20 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। ऑल राइट। हाफ ओलंपिक साइज। This area is dedicated for kids. This is for jacuzzi. बीच में सर सन लाउंजेस हैं। So suppose one day you want to have a poolside party, तो आप यहाँ पे 150 पैक्स की poolside पार्टी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। 150 मतलब आधे से ज़्यादा अपार्टमेंट्स वाले आके पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। 260 में तो ये कंप्लीट ही हो जा रहा है पूरा। करेक्ट सर। ऑल राइट। अगेन सर ये आप जो शेड एरिया देख रहे हैं सर ऊपर, ये ऊपर से कवर्ड एरिया जो आप देख रहे हैं जी, क्लब हाउस के ऊपर जी। सो दिस हैज सलून, स्पा, टॉटलॉट एरिया। अगेन सर ये जो एरिया आप देख रहे हैं नीचे, मैं वहां पे आता हूं। तो ये क्लब, हाँ जी।
ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा का पूरा एरिया किड्स प्ले एरिया है सर। ओके। सो इसमें फ्रॉम स्केटिंग रिंग, सो बच्चों को खेलने के लिए वी हैव स्विंग्स, अगेन जो भी सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं बच्चों को खेलने के लिए, एवरीथिंग इज हियर। इधर वी हैव बैडमिंटन कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, वॉलीबॉल कोर्ट एंड बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट हियर। दो सर एमिनिटीज हमारी रोड के इधर भी है। सो अर्लियर द टोटल लैंड पार्सल वाज 6 acres, सो बीच में कुछ एरिया वी हैड टू सरेंडर फॉर द रोड। ऑल राइट। सो ये जो ½ एकड़ का लैंड पार्सल है सर, ये प्रोजेक्ट के बाहर है। सो दिस हैज 2 हार्ड कोर्ट्स एंड अ कैफे फॉर मंचन। ऑल राइट। सो ये लॉन टेनिस कोर्ट आपने प्रोजेक्ट्स के साइड में रखा है? साइड में रखे हैं। ऑल राइट। सो दिस इज फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग हियर। ओके। बाहर के लोग इसको यूज नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। हमारे प्रोजेक्ट के जो EWS है वो हमारे प्रोजेक्ट के बाउंड्री के अंदर है, जहाँ पे 3 BHK 4 BHK है, या प्रोजेक्ट बाउंड्री के बाहर है? सर पहली चीज एक चीज आपने भी बोली थी कि प्रोजेक्ट के अंदर है, तो आपने मेरे हिसाब से सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही देखेंगे मोर और लेस की जिसके प्रोजेक्ट के अंदर ही उनका EWS। हाँ, फिर वो कुछ जुगाड़ करके डिमार्केशन करते हैं कि EWS को अंदर नहीं आना है। सर इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसका जो EWS है जी, वो प्रोजेक्ट के बिल्कुल अक्रॉस द रोड है। अच्छा, जहाँ पे आप खड़े हैं इसका मतलब ये EWS सर है। EWS है, बीच में सर रोड है और इधर भी रोड है, तो दिस EWS हैज नथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट। तो EWS वाले इस प्रीमाइसेस को यूज नहीं कर पाएंगे? करेक्ट सर। ऑल राइट। तो सर आपने जैसे सुना होगा बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर, अभी हमने बात कर ली बच्चों की, वर्किंग प्रोफेशनल्स की, सर किसी ने भी सीनियर सिटीजन की कोई बातें नहीं करता है। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दिस प्रोजेक्ट हैज अ डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन कोर्ट, जो बाकी प्रोजेक्ट्स में शायद देखने को नहीं मिलता है। ऑल राइट। और जो माता शीतला देवी मेडिकल रिसर्च सेंटर है वो भी सेक्टर 102 में है, और वो जब ये प्रोजेक्ट रेडी होगा आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2026 से, तो वो फंक्शनल हो जाएगा हॉस्पिटल। 750 बेड का हॉस्पिटल पहले फंक्शनल हो जाएगा जी, प्रोजेक्ट बाद में फंक्शनल होगा। हाँ, क्योंकि आपने सीनियर सिटीजन का नाम लिया तो मुझे हॉस्पिटल भी ध्यान आया, तो मैं सोचा ये इनपुट भी दे दूं। मुझे एक चीज़ और बताइए, अब इस प्रोजेक्ट में जैसे द्वारका एक्सप्रेस में जितने भी बिल्डर्स हैं वो बहुत हाई प्राइस में अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। किसी का 21,000 रुपये स्क्वायर फीट होता है, किसी का 25,000 रुपये स्क्वायर फीट होता है, कोई 27, कोई 32,000 स्क्वायर फीट भी के प्राइस में ला रहे हैं, प्राइस पॉइंट में। हमारा प्राइस पॉइंट क्या होगा, और ये जो प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट में कौन बाई कर रहा है यहाँ पे? कहाँ के लोग ले रहे हैं? क्या दिल्ली NCR के लोग ले रहे हैं, या जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो ले रहे हैं? कौन है वो लोग जो यहाँ पे और इन्वेस्ट कर रहे हैं, या एंड यूजर है? तो सर जैसे कि आपने पूछा कि पहले आपका पहला क्वेश्चन था कि प्राइस, तो सर इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपसे दोबारा से मैं पूछना चाहता हूँ। सर आपने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है सेक्टर 102 जी, प्रोजेक्ट्स भी देखे हुए हैं, जो हाई राइजेस हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं। जो लो राइज है वो इस पूरे बेल्ट में, जो द्वारका एक्सप्रेस से न्यू गुड़गांव का बेल्ट है, इसमें सबसे हाईएस्ट प्राइस कमांड करता है प्लॉट्स के अंदर। हाई राइज भी सर आपने देखा होगा कि बाकी एक और डेवलपमेंट लॉन्च था किसी नए डेवलपर का, तो दे आर सेलिंग एट समवेयर अराउंड 21,500 रुपीज सर जी, ठीक है सर। तो सर सेक्टर के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सेक्टर का प्राइस है समवेयर अराउंड 18,000, 19,000, 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आर प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है सर 15,750 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके। एंड सो ऐसा कैसे, मतलब क्या आप कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या कैसे ये प्राइस कैसे कम हो गया आपके लिए? तो सर आपको पता होगा कि जो बिल्डर्स अभी नए आ रहे हैं या फिर नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो वो लैंड अभी बाय कर रहे हैं जी, है ना। तो वो लैंड कॉस्ट आज की और आज से 10 साल पुरानी बात करूं तो उसमें काफ़ी फर्क है। आज से 10 साल पहले जो प्राइसेस थे और आज, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी ये जो लैंड है, अगर आपने 10 साल पहले लिया हो तो ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपए एकड़ लिया होगा, जो कि आज 40 से 70 करोड़ रुपए एकड़ है। सर आप कह सकते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइसिंग कि क्या किस प्राइस पे लिया है, बट दिस लैंड इज अ ओल्ड परचेज। ये जो लैंड है
ये बहुत पहले ही परचेज कर ली गई थी। ओके, सो इसी वजह से आप अपना प्राइस जो है वो कम रख रहे हैं। सर कम नहीं रख रहे, सही रख रहे हैं। सही रख रहे हैं, राइट, दिस इज द राइट वर्ड, सही रख रहे हैं। करेक्ट सर। ओके तो सर अभी आपने एक और चीज़ पूछी थी कि इसको बाय कौन कर रहा है। जी। सर मैं आपको, मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं यार दिल्ली के लोग बाय कर रहे हैं, या फिर गुड़गांव में मानेसर के लोग बाय कर रहे हैं। जी। तो सर ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको दिल्ली एनसीआर के, मैंने नोएडा के भी क्लाइंट्स यहाँ पे देखे हैं, मैंने द्वारका के क्लाइंट्स देखे हैं, या फिर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सबके क्लाइंट्स देखे हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं सर, इधर 102 के भी बायर्स हैं, 102 सेक्टर है उसके भी बायर्स हैं। साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से कहीं ना कहीं से बहुत प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको ऐसे 5-7 प्रोजेक्ट का नाम बोलूँ जहाँ के बायर्स ने या जहाँ के रेसिडेंट्स ने आके यहाँ पे बाइंग करी है, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? तो सबसे पहला प्रोजेक्ट 102 में ही है, जॉयविल है। अच्छा, वहाँ के लोग यहाँ पे लिया है। ओके। आपने सुना होगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है शोभा सिटी, मेरा फेवरेट है। अच्छा जी। तो वहाँ के लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। हेरिटेज मैक्स है, एमआर है, एमआर ग्रीन्स, या फिर अडानी ऑयस्टर, यहाँ तक के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे प्रोजेक्ट ले रहे हैं। एटीएस कुकून, एटीएस ट्राइंफ, एटीएस मैरीगोल्ड, इनफैक्ट पूरी एमरल्ड बे, यहाँ के भी लोग आके यहाँ पे प्रोजेक्ट में बाइंग कर रहे हैं। कुछ नाम आपने छोड़ दिया, जैसे इंडिया बुल्स, निगमा छोड़ दिया आपने, क्या वहाँ से भी लोगों ने लिया? पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन से लिया है लोगों ने? लिया है सर, लिया है, वहाँ से भी लिया है? वहाँ से भी लिया है सर। ओके। और है। किस तरीके के लोग ले रहे हैं ये? मिडिल, उनका ये फर्स्ट होम है या सेकंड होम है, या वो अभी जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसको बाद में वो रेंट आउट करके यहाँ पे मूव करेंगे? क्या उनका थॉट प्रोसेस क्या है? सर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मिक्स बायर्स है, तो इसमें एंड यूजर्स, जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा कि इनिशियल स्टेजेस पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा जाते हैं। जी। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इनिशियल स्टेज में आपको एंड यूजर्स मिलेंगे। ओके। इसका सर मेजर रीजन क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तो लो डेंस प्रोजेक्ट है कि 5.5 एकड़ में 2 ही टावर्स हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ आने वाले टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेगी। जी। तो उसमें एंड यूजर्स भी हैं, इसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, इसमें हर कैटेगरी मिक्स है सर। ओके। तो जैसे भी कोई भी हाई डेंसिटी जोन है जिसमें कोई नया डेवलपर प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, या फिर पुराना भी डेवलपर प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, तो बिग लैंड पार्सल्स हैं जिसमें आज के डेट में 1000, 2000, 3000 फैमिलीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। जी। अभी तो खैर फुली ऑक्यूपाइड नहीं है सोसाइटी। जब ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, सुबह जब उनको, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर 3000 घर हैं, 3000 घर में से मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 10% लोग सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ठीक है। ठीक है सर, 3000 का 10% से 300 लोग। जी। 300 लोग सर जब एक बेसमेंट से ऑफिस के लिए निकलेंगे तो सर जाम लग जाता है। हाँ, जाम लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कर लेते हैं, आज हम एम्बियंस मॉल जाते हैं, बहुत अच्छा मॉल है, सबसे अच्छा। वीकेंड्स पे जाते हैं हम, तो वीकेंड्स पे 50 लोग जब निकलते हैं ना सर एक साथ एम्बियंस मॉल से, तो वहाँ ट्रैफिक लग जाता है सर। इनफैक्ट मैं ये भी ऐड करूंगा, एम्बियंस मॉल तो फिर यहाँ से दूर हो गया, फिर भी वेगस मॉल जो कि द्वारका में, पीक डेज में बेसमेंट से बाहर निकलने में भी आधा घंटा लग जाता है वहाँ पे, और मुश्किल से 40-50 गाड़ियाँ होती होंगी एक साथ जो निकलने की कोशिश कर रही होती होगी। जी। तो सर ये जो प्रोजेक्ट है अगेन उस वही सेम, इसको सर अगर हम कंपैरिजन करते हैं, 268 अपार्टमेंट्स, 10% लोग, 26 पीपल, 26 लोग अगर इस बेसमेंट से निकलेंगे तो सर ट्रैफिक जाम लगने का कोई भी चांस ही नहीं। राइट है ना? ये बात तो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली जब कोई हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट में पूरा पोजीशन हो जाएगा और लोग उसमें मूव कर जाएंगे तो ये सिचुएशन आ सकता है। करेक्ट, मेरा भी ऐसा मानना है। जी सर ये आनी है, ये आएगी। अगर आज तो द्वारका एक्सप्रेस में पूरे लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं आए, आप अगर देखोगे आने वाले टाइम में ये चीज़ पक्का देखने को मिलेगी लोग। राइट, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं आई कैन विजुअलाइज कि ऐसा होगा, जब डेंसिटी पूरी भर जाएगी तो ऐसा होगा। यस सर। एक और बात सर, ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर 134 अपार्टमेंट, इस टावर के अंदर 134 अपार्टमेंट्स हैं जी। तो सर 134 अपार्टमेंट्स के लिए दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट
in North India to have 9 lifts. पूरे नॉर्थ इंडिया में आपने ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा जिसके अंदर 134 अपार्टमेंट्स के लिए 9 लिफ्ट्स हो। ओके, ये आप कंफर्म है कि है ही नहीं ऐसा? है ही नहीं है सर ऐसा। ओके, So I have personally seen 4, 5, 6, 7 lifts. मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट का नाम जानते हैं जिसमें एक टावर में जिसमें 9 lifts. 9 लिफ्ट्स हो और टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स 134 अपार्टमेंट। 134 रेसिडेंट्स के लिए 9 लिफ्ट हो। अगर आप जानते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हाय सर, मे आई हैव योर नेम प्लीज? I am Brigadier Praveen Deswal. I am from the Indian Army, from the Corps of Engineers. ऑल राइट, And I had about 35 plus years of experience in the engineering field, in the military engineering, in India as well as abroad, that is Lebanon and Okay. other places. एंड हाउ यू आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट सर? I am primarily monitoring the activities on the site. So I have been designated as Senior VP Tech and Administration ऑल राइट, for KBE, which is going to construct this particular project ओके, here. So that is primarily about 7-8 departments which are very critical to the project, like the safety norms, the quality checks, the audits. So all those things come under me. So I am going to be continuously monitoring these particular aspects. सो बेसिकली यू आर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन Yeah. कंपनी and you'll be taking care of the entire construction of this activity plus other admin activities. Yeah, I am from KBE, which is a very, very old company. Its vintage is 1959, All right, and it's got a footprint pan India, including Pune, Jammu, Jaipur, that is Rajasthan, and also primarily Delhi NCR, Gurgaon. All these places got a major footprint in terms of construction. so when you say about the footprints, is it the government construction footprints or the private construction footprints? It is about 30 plus odd private constructions which are happening. All right, It has got all kind of construction, including residentials, the colleges, the universities, all right. those kind of things. Okay, one very important thing which I want to ask you, sir, the water table of Dwarka Expressway is pretty high, and the older projects which are here, they are still struggling with the issues in their basement, wherein there are certain kind of seepage and leakages happening on regular basis. Though the developers and the residents are trying to get those things fixed, but in most of the projects, it is still there. It shouldn't be there. Yeah. What different construction you would be doing which will ensure that similar thing will not happen in your own project? See, there was a major issue. Now you must have heard in the newspapers also. There was a DDA, In Dwarka. in Dwarka, which after many years of construction, suddenly had a water issue. Correct. The basement, there was a blast kind of a noise, and the basement was flooded with water. Right. So ultimately, it all boils down to coming down to good engineering practices. Okay. So, in our exuberance of only focusing on speed of construction, we forget that if your basic engineering practices get diluted in the long term, those are going to. So our company is very strong in these basic engineering practices. Okay. These basic engineering practices, what I am trying to say, if there are bricks to be used, the basic engineering practices used to be, keeping these bricks, submerged in water for 24 to 48 hours, stacking them properly, and there are numerous kind of these practices, including the basement construction, the primary soil testing and other things, and then technology which has come up now with new waterproofing technologies and other things. Those are all, I would like to tell you also that my directors are all young guys, and they're all educated abroad, and they're focusing on technology. Okay. So the technology is the end thing today, and the key area in our company is the use of technology, whether it is monitoring the projects using SAP, which is a software to monitor the finances as well as the stores, other things. All right. So all these things are a key, result area in our company, and that's why we can easily, foresee. Being an army guy, we got a, training of trying to see further and also trying to visualize what are going to be problems after seeing what happened in Dwarka, and also putting in measures so that those things don't reoccur. So we can easily assure all our customers and other people that these kind of things are not going to happen here, because we focus on critical stages, and in those critical stages the critical quality checks, and then only we progress further, because we know that today in this world everyone looks at the
finishes, but Right. we look at the basic construction quality. All right. What I have seen with the new construction which is happening in Dwarka Expressway, the developers have adopted diaphragm wall technology. Are we also doing some these kind of construction? That is also there. That diaphragm wall technology is being used in this project. That's what has been discussed with our client. That is the HCBS, All right. and that's going to be in place. Okay. When I was speaking to the director of your company, he ensured me that they'll be able to. They're very confident that they will be able to deliver the project before time. Yeah. How confident as a construction partner you are that the project will get delivered on time and with a good construction quality? We are very confident regarding this because we believe in spending a little extra time in planning. Okay. Everyone misses out on initial planning. They want to do the planning very fast. You have to spend maximum time in planning. Our company focuses on that so that in the planning stages, all problem areas or pending decisions or future decisions are taken initially only, so that there are no delays. Because primarily delays happen on some changes in the design or anticipated changes in requirement of the users, etc. All these things are initially planned only. Right. 90% things can be planned in advance. As an army guy, I can say we look further and we can plan in advance. So with the client being one team, we all informally discuss all those issues, including your certain stoppages because of weather, rains, etc. So we are very clear that we can deliver on time because all these things are visualized. Okay. Except certain things can happen which are not in the hands of humans. Right. That's a different aspect. But we generally focus on this planning stage, maximum time, and then So last question, it's technical. Recently, the seismic zone of Delhi NCR, probably the north of India, has been raised by 1. So earlier, Gurgaon or Delhi NCR used to be in seismic zone 4, and now we are in seismic zone 5. So are we doing this construction as per seismic zone 5? See, that's what I told you. We look at the good engineering practice in that all these technical parameters of earthquake, planning the foundations as per your earthquake zones and all, those are mandatory requirements. Right. So those are never going to be violated anywhere. Those are unacceptable, engineering norms to be flouted. Correct. So those are very essentially planned, and this is going to be planned like that. That's why I was talking to you. I was telling you that we keep our ears and eyes open, and we came to know that as per the data which is coming in the televisions and all, the seismic zone is changing. Right. And next 10 years, what repercussions are going to be there across the North India because of this? Those aspects are already in place. So they are taken care of. Yeah, they are taken care Okay. And this is a My One construction? Yes. My One construction, that's why I said we focus on technology so that you get a good quality Right. because of My One construction. Also, you reduce the time. And also, one more major thing is that you focus on enhancing the skill of the workers by Right. getting them also trained for the new technology. Right. Because this skill, you must have heard our Prime Minister also speaking about Skill India and the skill. If you not focus on the skills of the people, we'll have the technology, we'll not have people with the skills. Right. So we focus on that very essentially, and it also reduces the time, as I said. All right. Thank you so much. Right. Sir. Thank you. अब मैं सर आपको एक एवी रूम के अंदर लेके जाता हूँ. एक बहुत अच्छा हमने थिएटर रूम बनाया है यहाँ पे, तो आप देखिए आके, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं डिटेल. All right. सर जैसे कि हम बाहर अभी प्रोजेक्ट को समझ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट के आगे और पीछे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वेटलैंड्स डिक्लेयर्ड हैं. तो सर ये एक्चुअल ड्रोन शूट है जी, जिसमें जो पीछे का एरिया दिखाया था वो बिल्कुल वेटलैंड है, कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी वहाँ. राइट. सेक्टर 107. करेक्ट सर. ये सर वो व्यू है आपको जो प्रोजेक्ट से पीछे से आएगा. ओके. ये द्वारका एक्सप्रेसवे से व्यू. ये सर द्वारका एक्सप्रेसवे से व्यू है. ये 24 मीटर से हम अंदर जा रहे हैं. 24 मीटर से आप अंदर जा रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर. आपने बहुत अर्थली कलर्स यूज किए हैं. हाँ जी सर. तो सर दिस इज योर मेन ड्रॉप ऑफ जोन. और यहीं से गाड़ियां फिर जो है वो बेसमेंट के पास चले जाएंगी. यहीं से गाड़ियां बेसमेंट में चली जाएंगी. यस सर. दिस इज योर ग्रैंड क्लब लॉबी, डबल हाइट, 20 फीट हाइट,
ये सर आपकी टार लॉबी है और टार लॉबी से आप लिफ्ट और लॉबी एरिया में जाते हैं। सो टावर के पास भी कॉन्सियज सर्विस होगा? यस सर, सो सर वी हैव 24/7 concierge and valet service. ऑल राइट। This is your private lift lobby area. So we are giving double door gate. ये सर आपको ये दिखाने का मेन रीजन ये है कि I just wanted to show you the floor to ceiling height of the project. तो सर इसमें जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है वो 11.3 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। आई थिंक ये यहाँ का सबसे बड़ा साइज होगा फ्लोर टू सीलिंग का। करेक्ट सर। बारिश वारिश भी आपने दिखा दिया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बारिश के टाइम में ऐसे ही दिखेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसे कि मैंने आपको मॉडल में दिखाया था और यहाँ पे भी दिखाने को मिल रहा है आपको जी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है आपको। अच्छा, जो सरफेस एरिया है उसमें आपने पेवर्स यूज किए हैं? करेक्ट सर। तो सर जैसे कि आपने देखा होगा बाकी कई प्रोजेक्ट्स में जो योगा और मेडिटेशन पार्क बना देते हैं जी, तो इधर हमने सेपरेट पॉड्स बनाए योगा के। ऑल राइट। दिस इज योर किड्स प्ले एरिया सर, जो मैंने आपको बाहर बताया था जी। अगेन सर स्पोर्ट्स एमिनिटीज 30% कंस्ट्रक्शन है, 70% इज यूज्ड फॉर एमिनिटीज एंड ग्रीन स्पेसेस, सो वी कुड अकोमोडेट मोर sports, more amenities in the project. All right. मुझे एलिवेशन काफी पसंद आया आपका। थैंक यू सर। दीज आर योर इंडोर गेम्स सर। स्क्वैश भी है? स्क्वैश भी है सर। ओके। जुम्बा स्टूडियो, मल्टीपर्पज हॉल। तो सर जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था कि को वर्किंग स्पेसेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर जी। तो सर आज की डेट में आप जानते हो कि आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। राइट। तो लोग घर पे काम करते हैं, लोग घर पे काम करके सर उनको वो ऑफिस एनवायरनमेंट मिल ही नहीं पा रहा है जी। तो सर इस लूप होल को कवर अप करने के लिए सर हमने प्रोजेक्ट के अंदर को वर्किंग स्पेसेस बनाए हैं। ऑल राइट। अगेन ये एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिसमें को वर्किंग स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड एक जोन है। सो को वर्किंग स्पेस सुनकर ऐसा लगता है कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं? नहीं सर, इट इज ओनली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑल राइट। So sir, this project has salon and spa, tot lot area, crèche for toddlers and a cafe for munchkin, जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था जी। सो ये एग्जैक्ट आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखने वाला है वहाँ प्रोजेक्ट के अंदर भी। ये वाला जो एरिया है ये क्लब हाउस के ऊपर का एरिया है? यस सर, ये क्लब हाउस के ऊपर का एरिया है। ऑल राइट। आपने पूल से तो ऐसा व्यू दिया है, ये लग रहा है बिल्कुल इन्फिनिटी व्यू वाला जैसा दिख रहा है मुझे। सर ये वैसा ही है, आपको व्यू भी इनफैक्ट ऐसा ही क्लियर मिलने और वाला आपने है। वो पेड़ों का जो हाइट है ना, आप उसके बराबर में पहुंच गया है ऑलमोस्ट। यस सर, इससे क्या है, इससे आपको व्यू भी ऐसा ही क्लियर मिलने वाला है जी। तो मैंने आपको जैसे पहले इनिशियली भी बताया था कि 116 एकर्स की प्लॉटेड डेवलपमेंट है तो आपको व्यू ऐसा ही मिलेगा क्लियर बिल्कुल। ऑल राइट। ये सर स्विमिंग पूल एरिया है, ये दिस इज हाफ ओलंपिक साइज। बीच में सर जो मैं सन लाउंजर्स आपको मॉडल के अंदर दिखा रहा था तो ये सन लाउंजर्स हैं। ओके। सो सपोज इफ वन डे यू वांट टू हैव अ पूल साइड पार्टी तो आप यहाँ पे पूल साइड पार्टी भी कर सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा था ना पूल में, जब वो सनराइज या सनसेट होगा तो वो बहुत प्यारा लगेगा। यस सर। इसीलिए सर हम इस प्रोजेक्ट के हर अपार्टमेंट को परफेक्ट होम बोलते हैं सर। अच्छा, और क्योंकि मैं ड्रोन शॉट्स लेता रहता हूँ तो जो आपने शॉट्स दिखाए हैं ना, यस सर, लोग तो वो व्यू नहीं कर पाते बट ड्रोन शॉट्स के थ्रू डेफिनेटली उन्होंने ऐसा व्यू किया होगा। एक्चुअल में अनहिंडर्ड व्यू है दोनों तरफ। यस सर। ये आपका वॉक थ्रू तो देख लिया मैंने लोकेश जी, जी। मुझे 3 BHK और 4 BHK का लेआउट प्लान भी देखना है, वो अभी तक नहीं देखा हमने। आओ सर चलते हैं, मैं आपको एक और प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देता हूं जिसमें आपको लेआउट्स, साइजेस के लेआउट्स आपको पूरे डीपली अंडरस्टैंड करने को मिलेंगे।
ऑल राइट। तो सर अभी हम आपको 3 BHK 2725 स्क्वायर फीट का साइज के लेआउट आपको दिखाऊंगा। ओके उसको समझाता हूं मैं आपको प्रॉपर्ली। जी। तो सर जो सुपर एरिया है वो 2725 स्क्वायर फीट है, जिसमें जो आपको यूजेबल कारपेट एरिया है वो आपको 2029 स्क्वायर फीट का मिलता है। ओके अगेन ये मेरे को बताने का ये रीजन ये है कि जो प्रोजेक्ट है, जो यूनिट है उसके अंदर जो लोडिंग है वो लेस देन 30% है। आज की डेट में लग्जरी प्रोजेक्ट में जो आपको लोडिंग देखने को मिलती है इट इज बिटवीन 35 to 45% लोडिंग आपको देखने को मिलती है जी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बस और बस लेस देन 30% की लोडिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ऑल राइट। ठीक है सर। तो सर ये आपका सर्विस लिफ्ट है, इधर सर्विस लिफ्ट से डायरेक्टली एंट्री है आपकी अपार्टमेंट, आपके सर्वेंट एंट्री करता है डायरेक्टली यूटिलिटी में। ठीक है। उसकी खुद की अपनी पर्सनल वॉशरूम उसका अटैच्ड है। ऑल राइट। योर सर्वेंट कैन डायरेक्टली गो इनसाइड योर किचन ओनली। ओके योर सर्वेंट कैन डायरेक्टली गो टू योर किचन। ऑल राइट। रेस्ट वो कहीं पे भी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किचन का डोर लॉक कर दिया हमने और हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए तो वो अपनी यूटिलिटी रूम में, अपने वॉशरूम में, यूटिलिटी बालकनी में और किचन को वो एक्सेस कर सकेगा। करेक्ट सर। ऑल राइट। ये सर आपकी प्राइवेट लॉबी है, ये आपकी प्राइवेट लिफ्ट्स हैं और ये आपका प्राइवेट लॉबी एरिया है ओके जो कि आपके नाम के अंडर रजिस्टर्ड है। ऑल राइट। तो सपोज कभी कोई बैंकर आता है, आपको नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है जी और आपको उसको ऊपर बुलाना है एंड यू ऑल्सो ऑन दी, आपको उसको ऊपर बुलाना है और आप उसको चाहते नहीं है कि वो आपके घर के अंदर भी आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोफा प्लेस कर सकते हैं और उसको यहाँ पे आके वो बैठेगा, आप उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे और वो आपकी लिफ्ट से दोबारा से वापस नीचे चला जाएगा। ऑल राइट। ये सर एक गेट है। अगर कोई स्विगी जोमेटो से आता है, अगर आपको सर्वेंट नहीं है, आपको खुद कलेक्ट करना है, तो आप ये गेट को ओपन करेंगे, डायरेक्टली आप इधर से अपना सामान ले सकते हैं। ठीक है। ये सर आपका डबल डोर का गेट है। जनरली आपने देखा होगा बाकी प्रोजेक्ट्स में आपको सिंगल गेट मिलता है जी। इधर सर हम डबल डोर गेट लगा के दे रहे हैं। आप एंटर करते हैं, यू गेट अ स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग। सबसे छोटा रूम जो इस प्रोजेक्ट के अंदर है जी वो सर 11.1/13 का रूम है ओके विद ड्रेसर एरिया। ठीक है तो सर जो सबसे बड़ा रूम है वो 17.8/13 फीट का है। जी इसके साथ में इसका प्राइवेट ड्रेसर है। ओके सो वॉकिंग वार्डरोब जैसा आपने दिया हुआ है। करेक्ट सर। ऑल राइट। तो सर हमारा 3 BHK किसी और डेवलपर का 3.5 BHK है, बिकॉज दिस 3 BHK कम्स विद सर्वेंट एंड स्टडी। ओके सो आपका जो 3 BHK है दैट इज 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस यूटिलिटी, ऐसा मान ले? करेक्ट सर। या 3 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी? 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस 3 BHK प्लस यूटिलिटी प्लस स्टडी है जी। राइट सर। 3 BHK हर रूम के साथ उसका सर वॉशरूम अटैच्ड है। सो वी हैव गॉट अ सेपरेट पाउडर वॉशरूम। ऑल राइट। जनरली आप देखते होगे प्रोजेक्ट्स के अंदर 3 BHK है तो उसमें 3 टॉयलेट्स है जी। सो दिस प्रोजेक्ट हैज 5 washrooms. This unit has 5 washrooms, a separate washroom for your servant, 3 washroom with the rooms and a separate powder washroom. ऑल राइट। ठीक है। अगेन सर इस प्रोजेक्ट के साथ में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, every apartment comes with a private deck. So this project comes with a 9 feet wide deck. Every apartment that you see is a 3-side open apartment. So 1 balcony, 2 balcony, 3 balcony and a balcony with the utility. जी। बालकनी के एक बार साइज बता देंगे आप प्लीज? तो सर दिस इज योर रैप अराउंड balcony which is 2750 mm wide. ओके It is 9 feet wide. This balcony is somewhere around 6 feet wide and this is also somewhere around 6 feet wide. ऑल राइट। 5.11 to be very precise. जी। आपने 2 रूम का साइज बता दिया, आपने 3rd रूम का साइज नहीं बताया, क्या वो रूम छोटा है? नहीं सर वो बड़ा है सर रूम। सबसे छोटा रूम तो सर 11.1/13 फीट का ही है। ओके जो उससे बड़ा जो 3rd रूम है सर उसका जो साइज है इट इज 13/13 into 11.11। मतलब 13 फीट बाई 12 फीट के आसपास। करेक्ट सर। ऑल राइट। और जो स्टडी रूम है उसका क्या साइज है? सर स्टडी रूम का जो साइज है वो सर
11.9। ओके, एंड जो वॉशरूम्स हैं उनके लगभग एवरेज साइज क्या है? सर एवरेज साइज 8x6। 8x6 फीट की। हाँ जी। ऑलराइट, और जितने भी हमारे फ्लैट्स हैं, बीट वो किसी भी फ्लोर में हो, तो सबका फ्लोर टू सीलिंग हाइट 11.3 फीट है या वेरी करता है? नहीं सर, सबका 11.3। 11.3 फीट है। ऑलराइट, मैं बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ को जानता हूँ जिसकी जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है 9-9.5 फीट की होती है, किसी की 10 की होती है, कोई 10.25 दे देता है। सर यही है मैक्सिमम जो देखने को आपको आज की डेट में मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 11.3 फीट की सीलिंग हाइट है। आपने लोडिंग भी कम किया हुआ है, 30% से कम, आपने फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी ज़्यादा दे दिया। आई थिंक ये सब आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो लैंड बाइंग की कॉस्ट थी ना, वो आपने लैंड बाय 10 साल पहले कर लिया था यहाँ पे, एंड इवेंचुअली जो प्रॉफिट आप ले सकते थे प्राइस इंक्रीज करके, उसको आपने करेक्ट प्राइसिंग करा और इवेंचुअली जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बेटर कर दिया। यस सर, एग्जैक्टली जी। इसके अलावा और क्या क्या साइजेस हैं हमारे पास? सर इसके अलावा 3 BHK के अंदर एक और साइज है विच इज 3000 स्क्वायर फीट। ओके। 4 BHK में सर 2 साइजेस हैं, 3265 एंड 3800 स्क्वायर फीट। ऑल राइट, यही 4 साइजेस हैं सर उस प्रोजेक्ट। ओके, एक बार 4 BHK का भी लेआउट दिखा देंगे प्लीज? तो सर जैसे ही मैंने आपको 3 BHK के 2 लेआउट्स दिखाए थे, 4 BHK में भी 2 साइजेस हैं, 3265 स्क्वायर फीट एंड 3800 स्क्वायर फीट। ऑल राइट, लोकेश जी हमने 3 BHK का भी लेआउट देख लिया, 4 BHK का भी लेआउट सामने है। मैं जूम कर देता हूँ सो डैट स्क्रीन को पॉज करके जो व्यूअर्स हैं वो पढ़ सकते हैं, सारे जो साइजेस हैं वो लिखे हुए हैं इसमें, और एक्चुअल साइज आपने बता ही दिया है। अच्छा, अब ये जो 3 और 4 BHK है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे? सर इसमें जो कॉमन एरियाज हैं, इसमें हम इटालियन मार्बल लगा के दे रहे हैं। ओके, ठीक है। किचन हम फुल्ली फिटेड किचन दे रहे हैं विद ऑल वाइट वुड्स, सो एक्सेप्ट द रेफ्रिजरेटर आपको किचन में सब कुछ देखने को मिलेगा। डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, एवरीथिंग, चिमनी, ये आप दे रहे हैं? ये हम सब लगा के दे रहे हैं। ओके, हेटिक की किचन रहने वाली है। ऑल राइट। वॉशरूम्स में कूलर की फिटिंग्स हैं। एसी, एवरी यूनिट इज अ VRV डक्टेड यूनिट हियर। ओके, तो सारी यूनिट्स VRV डक्टेड यूनिट्स हैं, जिसमें एसीज मित्सुबिशी और डाइकिन के। रूम्स में सर यू हैव अ ऑप्शन टू ईदर गो फॉर इटालियन मार्बल और यू कैन गो फॉर लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। ओके, सो अगर 3 BHK में अगर आप चाहते हैं कि 2 रूम्स में यार मैं लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग लगाना चाहता हूं, तो यू कैन गो फॉर लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग 2 रूम्स के अंदर, और 1 रूम के अंदर हम इटालियन मार्बल लगा देंगे। अगर मैं चाहूँ कि तीनों में लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग हो तो वो भी सर तीनों में लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग लगा देंगे। अभी तक मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखा नहीं है जहाँ पे तीनों में देते हैं। नॉर्मली मास्टर बेडरूम में लगा कर देते हैं सारे डेवलपर्स। नहीं सर, आपको आपकी चॉइस है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने रूम्स में क्या चाहिए। सो ये किस स्टेज में मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा? जब मैं बुकिंग करूंगा तभी इमीडिएटली मुझे बताना है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर दी हैंडओवर आप हमसे ये चीज़ इनपुट लेंगे? सर ये प्रेफरेबली बुकिंग टाइम पे ही, जैसे आप बुकिंग करते हैं उसी टाइम पे हम आपसे पूछ लेंगे, या फिर आप अगर प्रोजेक्शन के टाइम पे भी आपसे एक बार पूछा जाएगा। फ्लोरिंग करने से पहले आप पूछ? करेक्ट सर। ऑल राइट, ये तो हो गया ये सारा कुछ। इसके अलावा पेमेंट प्लान क्या होगा हमारा? सर पेमेंट प्लान बहुत धमाकेदार है। तो सर जो पेमेंट प्लान है वो है 30-20-50। 30% जो आप इनिशियल पेमेंट है वो आपको 90 डेज में देनी है। ओके। जो नेक्स्ट 20% है वो ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सो बीच में आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स। फॉर 30 मंथ्स कुछ नहीं देना है मुझे? कुछ भी नहीं। इनिशियल 30% देना है बस? इनिशियल 30% देना है, उसके बाद 20% ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर जी, 25% ऑन एप्लीकेशन ऑफ OC, ओके, एंड 25% ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। ओके। एक चीज सर आपको इसमें थोड़ा सा अलग दिखी होगी बाकी डेवलपर्स से जी। सो बाकी डेवलपर्स में क्या होता है कि OC के टाइम पे आप वो आपसे 40% ले लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे डेवलपर है जो बोलते हैं कि ऑन कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर में आपको X% पेमेंट करना है, बट वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है और फिर भी वो पेमेंट मांगते रहते हैं। आप तो ऐसा नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब आपसे 20% लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ OC पे 25 लेंगे, और पोजेशन पे, ऑफर ऑफ पोजेशन पे आपसे 25%। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑफर ऑफ पोजीशन में आप बोलेंगे 5% जो बच गया वो दे दो, जैसे नॉर्मली डेवलपर्स करते हैं, बट 25% आपने रखा है ऑफर ऑफ पोजीशन पे, विच इटसेल्फ गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कंप्लीट होगा,
पोजीशन होगा, टाइमली होगा, और तभी वो 25% एज एन इंसेंटिव आपको भी मिलेगा। करेक्ट। ऑल राइट लोकेश जी, मुझे एक चीज़ और बताइए। मैंने आपसे ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया, आपने भी सब कुछ बहुत पेशेंटली मुझे समझाया। मैं आपकी पूरी टीम से, आपके मैनेजमेंट टीम से मिला, आपके डायरेक्टर से मिला, आपके कंस्ट्रक्शन टीम से, आपके आर्किटेक्ट टीम से मिला। आपने सब कुछ डिटेल में बताया। बट अगर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को और डिटेल में जानना चाहते हैं, और क्या क्या पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है, क्या कॉस्टिंग होगी, वो सब जानना चाहते हैं, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर मुझे कांटेक्ट करने का बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी प्रोसेस है। ये स्क्रीन है, इस पे जो नंबर दिख रहा है, आप इस पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हैं कॉल करके, या फिर आपको अगर मेरे से पर्सनली मिलना है तो आप यहाँ इस नंबर पे कॉल करके अपनी साइट विजिट फिक्स करके आप मेरे से मिल सकते हैं। तो किसी को भी आपसे मिलना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर ले वो, और आप उनसे मिल लेंगे। यस सर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच लोकेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू।